Students, our today's topic of colloidal dispersion system is properties of colloidal dispersion. There are three properties of colloidal dispersions, that is optical property, electrical property and kinetic property. And in this lecture, I am going to explain the optical properties of the colloidal dispersions. Optical property. First is light scattering. When an intense converging beam of light is passed through a colloidal solution kept in dark, the path of beam gets illuminated, due to which the soul appears turbid. So what will happen? अगर कोई colloidal soul है और उस colloidal soul के थ्रू एक लाइट जो है वो पास हो रही है, तो उस लाइट का कुछ पार्ट जो है दैट विल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल कुछ लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे, कुछ पार्ट उस लाइट का जो है दैट विल गेट स्कैटरिंग हो जाएगी, और कुछ पार्ट उस लाइट का जो है दैट विल गेट ट्रांसमिटेड एज सच एंड अनडिस्टर्ब्ड। तो अब ना जो स्कैटरिंग है ये किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपका कोलाइडल सोल है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो इसमें जो डिफरेंस है, ड्यू टू दैट देयर हैपन्स स्कैटरिंग, और ड्यू टू दिस स्कैटरिंग देयर द सोल अपीयर्स turbid, and this phenomena is called Tyndall effect. The term was given by physicist John Tyndall, and the illuminated path is known as Tyndall cone. Okay? तो अगर सपोज आपके पास अगर ट्रू सोल्यूशन है, तो अगर उस ट्रू सोल्यूशन के थ्रू अगर कोई लाइट पास होती है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो टर्बिडिटी, बिकॉज वहाँ पे कोई भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है। बट जो कोलाइडल सोल है, in that case there happens scattering, and that's why there occurs turbidity. Now, if you want to measure the turbidity of a colloidal soul, then it can be measured by two ways. First, by measuring the intensity of transmitted light, and second one is by measuring the intensity of the scattered light. First, we talk about the measurement of transmitted light. In this, the instrument that we use to measure this transmitted light intensity is spectrophotometer, or it is also called as turbidity meter, which is used to measure the intensity of transmitted light. In this measurement of transmitted light is carried out in the same direction of the incident light. जैसे आप यहाँ पे जो है here is the light source. तो लाइट सोर्स जो है दैट दैट इज पासिस थ्रू दिस लेंस। अभी लेंस का क्या करेगा, जो भी लाइट आ रही है लाइट सोर्स से, इट विल कन्वर्ज दिस लाइट टू द सैंपल। तो यहाँ पे आपका जो है सैंपल प्लेस किया है, देन देयर आफ्टर सैंपल देयर इज प्रेजेंट अ लाइट डिटेक्टर। सो it means in case of this spectrophotometer or turbidity meter, the light detector is present just in same direction of the incident light। जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट लाइट आ रही है, उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। नाउ now what you have to do, you have to calculate the value of turbidity. For this you will use the equation I is equal to I naught exponential of minus tau into L. In this, I naught is the intensity of incident beam, I is the intensity of transmitted light, L is the length of sample tube, and tau is the turbidity of the colloidal source. So using this formula, if you further simplify this formula, you can find out the value of turbidity from this. And this method is used in case of lyophobic colloidal dispersion system, in which the and also in that type of colloidal source in which the concentration of dispersed particle is very high and there is very high turbidity. In that case we use this
method, that is measurement of intensity of transmitted light using the instrument spectrophotometer. Measurement of scattered light. In this, nephelometer is used to measure the intensity of scattered. तो जहाँ लाइक इन केस ऑफ जहाँ जो ट्रांसमिटेड लाइट जहाँ पे आप जिसकी इंटेंसिटी जब आप मेजर कर रहे थे उसमें जब आपने देखा था तो इन दैट केस वहाँ पे क्या था, लाइट सोर्स था, लेंस था, देन लेंस से जो लाइट भी इंसिडेंट लाइट है वो कन्वर्ज हो रही थी टुवर्ड्स सैंपल, देन उस सैंपल के बिल्कुल उसी डायरेक्शन में क्या था, डिटेक्टर प्रेजेंट था. बट दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रांसमिटेड एंड स्कैटर्ड लाइट. स्कैटर्ड लाइट के केस में जो डिटेक्टर है दैट इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट. मीन्स की जो आपकी लाइट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन और जो आपका डिटेक्टर है वो आपका इसके बीम ऑफ लाइट के बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स. नाउ इन दिस केस जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज नेफेलोमीटर. सो in case of this measurement of intensity of scattered light, now if you have to calculate the value of turbidity, for this you will use the equation tau is equal to 16 pi upon 3 into R90. R90 जो है that is the Rayleigh ratio which was named after the scientist Lord Rayleigh who laid the foundation of the light scattering theory. तो अब इसमें क्या है कि इफ यू वांट टू get the value of R90, that is Rayleigh ratio, you can find it from this equation. R90 जो है that is equal to I theta into R square upon I, where I theta is the intensity of scattered light, I is the intensity of incident light, R is the distance from the scattered point to the point of observation, and tau is the turbidity. So from this you get the value of this intensity of scattered light. और ये सारी वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे देन आफ्टर दैट पुट दिस R90 वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो वहां से आपको टर्बिडिटी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. एंड दिस मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, अगर आपका कोलाइडल सोल जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल, या फिर अगर कोलाइडल सोल में जो पार्टिकल्स है डिस्पर्स पार्टिकल है अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो स्कैटर्ड लाइट है उसको मेजर करते हैं. क्योंकि जहाँ पे जिस कोलाइडल सोल में डिस्पर्स्ड पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसमें क्या होता है, जो टर्बिडिटी है वो भी कम होती है. और ड्यू टू दैट उसमें अगर आप उस सैंपल को ऑब्जर्व करोगे अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, तो जो अगर आप उसमें स्कैटर्ड लाइट को ऑब्जर्व करोगे दैट इज मोर इजी एज कंपेयर टू अगर आप जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको ऑब्जर्व करोगे. क्योंकि जब आपका जो कोलाइडल सोल होता है उसमें जब डिस्पर्स्ड पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी वैल्यू जो है वो नियर अबाउट इंसिडेंट लाइट के ही इक्वल होती है, उनमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है. तो अगर आपको फिजिबल जो है वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी. Now, light scattering property of colloids is used in determination of molecular weight of colloids using formula Hc upon tau is equal to 1 by n का जो है लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी जो है दैट इज यूजफुल. तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप जैसे आपने क्या किया, बाय मीन्स ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आपको कौन सी वैल्यू मिलती है, टर्बिडिटी की वैल्यू मिलती है. ठीक है, तो अब आपके पास टर्बिडिटी की वैल्यू है, तो वो टर्बिडिटी की वैल्यू से आप क्या करोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे और इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोलाइड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब इस इक्वेशन में जो टाउ है दैट इज द
टर्बिडिटी जो आपकी डिटरमाइन होगी बाय मींस ऑफ जो भी आप मेथड यूज करते हो, एदर स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करो या फिर ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करो बेस्ड ऑन योर मेथड, जो भी आप मेथड यूज करते हो, तो उससे आपको टर्बिडिटी की वैल्यू मिलेगी। और सी जो है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन का आप सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो वो वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। देन एम जो है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट जो कि आपको फाइंड आउट करना है। बी जो है दैट इज द इंटरेक्शन कांस्टेंट, और यू कैन से इट इज द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कांस्टेंट, जिसकी वजह से क्या है एक सोल में जो है नॉन आइडियलिटी आती है उस इंटरेक्शन की वजह से, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और एच जो है दैट इज द ऑप्टिकल कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब अगर आपने ये n की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, टर्बिडिटी की वैल्यू चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चाहिए और आपको चाहिए h की वैल्यू। ठीक है, टर्बिडिटी की आपके पास वैल्यू होगी, आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन का कोलाइडल सोल्व प्रिपेयर करोगे वो वैल्यू भी आपके पास होगी। देन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू h। तो ये h की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग दिस फॉर्मूला h इज इक्वल टू 32 pi raised power 3 n raised power square dn upon dc whole square divided by 3 lambda raised power 4 into n। तो ये इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें जो n जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, n जो है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, dn अपॉन dc जो है दैट इज द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज h निकालने के लिए आपने क्या किया, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट किया, तो डी उससे आप क्या निकाल सकते हो, dn बाई dc की वैल्यू निकाल सकते हो। और एमडा जो है दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप जब ये इक्वेशन यूज करोगे तो ये इक्वेशन किससे रिलेट करती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y जो है दैट इज योर एच सी अपॉन टो, और c जो है दैट इज योर x। ठीक है, तो ये इसमें b जो है ये क्या होगा आपका स्लोप। तो इंटरेक्शन कांस्टेंट अगर निकालना है आपने तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, स्लोप की वैल्यू से। एंड सेकेंड थिंग इज मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से मिलेगा, उस स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट की वैल्यू से आपको m की वैल्यू मिलेगी। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कोलाइड from the this light scattering property of colloids. Ultra microscope, or also known as dark field microscope. Now in this जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको नहीं देख सकते। सो एज वी नो कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनमें क्या हो रहा है, लाइट स्कैटरिंग हो रही है। तो ये लाइट स्कैटरिंग को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में क्या होगा, बाय यूजिंग दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यू कैन ऑब्जर्व, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देयर इज अ लाइट सोर्स। ठीक है, अब लाइट सोर्स के से क्या होगा, जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है दैट विल पास थ्रू दिस हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इट इज द कोराइडल कंडेंसर। अब लाइट जब इस सिलेंडर के थ्रू पास होगी देन दिस लाइट विल कन्वर्ज ओवर द सैंपल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो सैंपल होगा। नाउ अब जब इस सैंपल को आप ऑब्जर्व करोगे तो सैंपल को आप कहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, एट द राइट एंगल ऑफ दिस इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आपकी लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ पे जो है सैंपल है, और इस इंसिडेंट लाइट के राइट एंगल पे जो है क्या प्रेजेंट होगा, जो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे सैंपल को at right angle of the incident light and against a dark background। तो ये जो सैंपल है इसके बैक साइड में क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड होगा।
और दूसरे अपोजिट साइड में जो है देयर विल बी योर ऑब्जर्विंग पॉइंट जहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करोगे। तो उसके बाद जब आप इन डिस्पर्स्ड पार्टिकल को डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखोगे, these dispersed particles will appear as bright spots like in this diagram। ये आपका जो इस तरह से अपीयर होंगे, ठीक है। एंड here is the picture of this ultra microscope that we use for these colloidal particles। एंड ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है इसको हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? इफ यू हैव टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल, in this case we use this ultra microscope। Electron microscope, it is used to measure particle size, shape and structure। The electron microscope is capable of giving actual picture of the particles। uh, the electron microscope, if you compare this microscope with other microscopes, the resolving power of this electron microscope is very high। In case of electron microscope, the source of radiation is high energy electrons having a wavelength of 0.1 Armstrong। The beam of this high energy electrons is focused by means of electromagnets। And also in electron microscope, as the wavelength decreases, the resolution, that is the resolving power of the microscope, also increases। And also by electron microscope we can take the photographs of the particles। Now there is one disadvantage of the electron microscope. What is that? Now if the sample that you are examine is in wet state, then electron microscope cannot give information about it। सो अगर आपका सैंपल ड्राई स्टेट में है तो ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमें उसके रिजल्ट्स देगा। अगर आपका सैंपल जो है उसमें किसी भी टाइप का लाइक मॉइस्चर आता है या वो वेट स्टेट में जाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल for or electron microscope cannot examine it or it cannot give us a reliable result in that case। So to overcome this, there is a recent development which is the development of environmental scanning electron microscope। So अगर आप यूज करते हैं environmental scanning electron microscope, only that microscope can give us results, or only that microscope can examine a sample in its wet state। Okay, so that's all about today's topic। In next lecture you will study rest of the properties of the colloidal dispersion system।